عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہار کے انتخابی رجحانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ وہیں پر میں یہ بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش میں کس طرح خواجہ سراؤں کے لیے ایک مدرسے کا افتتاح ہوا ہے۔ وہیں میں ارنب گوسوامی کی مشکلات میں بڑھتے اضافے کی بات کروں گا۔ ان کی بیوی، بیٹے اور دیگر دو کے خلاف بھی کیس درج ہونے کی بات آ رہی ہے۔ موزمبیق میں بہت ہی خطرناک حملہ ہوا ہے اور 50 افراد کا سر قلم کرنے، پوری بستی کو جلانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں بتاؤں گا میکسیکو میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، قہر جاری ہے۔ آذربائیجان پوری طرح سے اس وقت کامیاب ہو چکا ہے اور کاراباخ کو آزاد کرنے میں آرمینیا کے ہاتھوں سے، اور اس وقت جشن کا ماحول ہے آذربائیجان میں۔ ویڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس اسٹاپ پہ کس طرح ایک سافٹ ویئر انجن نے خاتون سے ہراسانی کی، اویسی کو لے کر کے سیمانچل میں مہا گٹھبندھن کا کھیل خراب کرنے کا الزام لگ رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیدھی بات آفیشیل جس کی لنک ہمیں دیتے ہیں یہاں پر نیچے سبسکرپشن میں، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ کوئی بھی حالات ہوں تو وہاں پر ہم آپ لوگوں سے رابطہ کر سکیں، اور وہاں بھی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں شارٹ کلپس کے نام سے، کہ کسی کے پاس وقت کم ہے تو وہاں پر بھی ہماری ایک کلپ وہاں دیکھ سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بہار۔ رجحان میں الٹ پھیر کا سلسلہ جاری ہے۔ این ڈی اے اور مہا گٹھبندھن کے درمیان لگاتار سخت مقابلہ ہوتے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس دلچسپ مقابلے میں ایک بار پھر اکثریت کے لیے ضروری جو نمبر یعنی کہ 122 ہے، وہ این ڈی اے اس سے پیچھے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی آگے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تازہ ترین خبریں یہ مل رہی ہیں کہ این ڈی اے 119 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے، تو وہیں پر مہا گٹھبندھن 114 سیٹوں پر سبقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور دیگر پارٹیوں کے 10 امیدوار سبقت بنانے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین ابھی تک مکمل طور پر رزلٹ نہیں آ رہا ہے، لگاتار یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور رزلٹ صاف طور پر نکل کر کے بہار الیکشن کے آنے میں ابھی وقت درکار ہے اور وقت لگے گا، اس لیے کہ ابھی تک لگاتار جو خبریں آ رہی ہیں مختلف میڈیا کے حوالے سے اور اندرونی سطح پہ، وہ یہ ہے کہ اس وقت کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے این ڈی اے اور مہا گٹھبندھن کے درمیان میں۔ دیکھتے ہیں کہ بہار کی گدی کس کے حوالے ہوتی ہے، اس لیے کہ الگ الگ طرح سے اس وقت رجحانات آ رہے ہیں۔ تو ناظرین وہیں پر ای وی ایم کو ہیک کرنے کے الزامات بھی این ڈی اے پر لگ رہے ہیں۔ جس طرح سے جیت کے قریب ہوتی جا رہی این ڈی اے، آج صبح سے الگ الگ انداز میں ای وی ایم ہیک کرنے کی خبریں سوشل میڈیا میں، اس پر بھی زوروں شوروں سے بحث جاری رہی۔ بہرکیف پشپم پریا کا ماننا یہ تھا کہ جنہوں نے اشتہارات دے کر کے خود کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بھی قرار دیا تھا، ہارنے کے قریب یا پیچھے جب چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پلورلز پارٹی کے ووٹوں کو این ڈی اے کی طرف منتقل کرنے کے لیے ای وی ایم کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کا انہوں نے بیان دے کر کے ایک مرتبہ پھر ای وی ایم کو مشکوک بنا دیا ہے۔ وہیں پر ناظرین جھارکھنڈ کی دونوں اسمبلی سیٹوں پر بی جے پی کو شکست ہوئی ہے، ہریانہ میں بھی شکست ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کرناٹکا میں بی جے پی کو فتح ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریاستوں میں بی جے پی کو فتح ہوئی ہے۔ وہیں بی جے پی کے بہار میں کیا حالات ہیں، ابھی کچھ دیر لگے گی پوری طرح سے نتائج سامنے آنے کے لیے۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو اگلے خبر کی جانب لے چلنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں خواجہ سراؤں کے لیے ایک خصوصی مدرسے کا افتتاح کیا گیا ہے، جس سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنے والی اس برادری میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق دعوت الاسلام ٹریٹیو لنگر یا اسلامک تھرڈ جینڈر اسکول کا افتتاح گزشتہ ہفتے جمعہ کو کیا گیا۔ مدرسے کے افتتاح کے موقع پر 50 سے زائد خواجہ سرا طلباء نے قرآن آیات کی تلاوت کی۔ ایک 33 سالہ خواجہ سرا اشکیلا اختر نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ سرا علماء کے اس قدم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مسلمان خواجہ سرا ہیں، لیکن ہمیں مسجد جانے کی اجازت نہیں جاتی، اور اگر کوئی خواجہ سرا مسجد چلی بھی جائے تو لوگ اسے کوستے ہیں۔ میں سوچتی ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے اس معاشرے میں ہمیں جگہ کیوں نہیں دی جاتی۔
بنگلہ دیش میں 15 لاکھ ख्वाजा सरा बसते हैं। मदरसे के बानी अब्दुर्रहमान आज़ाद जो इन उलमा के लीडर हैं जिन्होंने मिलकर ये स्कूल कायम किया, पहले से 7 ख्वाजा सराओं को कुरानी तालीमात दे रहे थे। वक्त के साथ उन्होंने महसूस किया कि कई ख्वाजा सरा कुरानी तालीमात लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। एक मकामी NGO के ताउन से उलमा ने मदरसा एक 3 मंजिला इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कायम किया है। अब्दुर्रहमान आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा, अल्लाह ने ख्वाजा सराओं के लिए अलग से कोई आयत नाजिल नहीं की हैं, उन्हें तमाम वो हुकूक हासिल हैं जो बाकी लोगों के पास हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी पर बहुत तनकीद करते हैं लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हम ही उन्हें ना स्कूल यूनिवर्सिटी जाने देते हैं ना मदरसे जाने देते हैं, उन्हें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती, ये लोग और क्या कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, बांग्लादेश के इन उलमा ने एक मिसाल कायम की है दीगर ममालिक के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इस कदम की सराहना भी होनी चाहिए और उनके नक्श कदम पर चलते हुए ऐसे बहुत सारे मुसलमान ख्वाजा सरा आपको बाज़ारों में घूमते हुए सर्कल पर अलग अलग अंदाज में मिलेंगे, अलग अलग हुलियों में मिलेंगे। अगर उनमें मेहनत की गई तो मुमकिन है कि जो है उन लोगों के लिए एक बेहतरीन साया भी मिले और उनके लिए एक अच्छा रास्ता भी मिले और उनके लिए ज़रिए माश के लिए भी कोई रास्ता खुल जाए इस तरह के रास्तों से। और वो जिन रास्तों पे अक्सर गलत रास्तों पर इन लोगों को देखा जाता है उस रास्ते से जो है तौबा करके भी इस जानिब आ जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। ऐसे में बांग्लादेश ने एक मिसाल कायम की है, इस नक्श कदम पर चलने की कोशिश होनी चाहिए दीगर उलमाओं के लिए भी और दीगर तंजीमों के लिए भी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो है अर्नब गोस्वामी की मुश्किलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, उनकी बीवी, बेटे और 2 दीगर पर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर हमला करने के इल्ज़ाम में बुध को एक और मामला दर्ज कर लिया। इल्ज़ाम यह है कि जिस वक्त पुलिस अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची उस वक्त उनकी बीवी समृता गोस्वामी ने और बेटे ने और 2 दीगर ने पुलिस के काम में रुकावट डालने की कोशिश की थी। जब अर्नब को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था उस वक्त अर्नब को यह कहते हुए सुना गया था कि पुलिस ने उनके घर में उनसे मारपीट की। आपको बता दें कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने साल 2018 में 53 साल के एक इंटीरियर डिज़ाइनर उनकी मां की खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था और वो पूरा ड्रामा आपने देखा था। अब इसी के चलते गिरफ्तारी के मौके पर जो बदतमीज़ी की गई पुलिस के खिलाफ उनके अहल खाना की जानिब से, इस सिलसिले में एक मामला और दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ मोज़म्बिक, जो बहुत ही ख़तरनाक और वहशतनाक और बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के शिमाली सूबे काबो डेलगाडो में शिद्दत पसंदों ने 50 से ज़ायद अफराद का सर कलम कर दिया है। ये जंगजू 2017 से इस सूबे में इस तरह के वहशियाना हमले कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं, इस तरह के शहरों से हम लोग जानते हैं। मोज़म्बिक की सरकारी मीडिया और पुलिस ने बताया है कि एक शिद्दत पसंद तंजीम ने शिमाली मोज़म्बिक के काबो डेलगाडो सूबे में पीर के रोज़ कई गाँव पर हमले कर दिए और 50 से ज़्यादा लोगों का सर कलम कर दिया। एक पुलिस अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने मकानात को आग लगा दी थी और जब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और झाड़ियों में छुप गए थे तो उन्हें तलाश करके कत्ल करना शुरू कर दिया था। आईनी शाहिदीन ने मकामी मीडिया को बताया कि जंगजुओं ने गांव की रिहायशियों को घरों से निकालकर फुटबॉल के एक मैदान में जमा किया और फिर उन सबको वहीं कत्ल कर दिया। जंगजुओं ने औरतों और बच्चों को मुबैना तौर पर अगवा भी कर लिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, काबो डेलगाडो गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरसों से बगावत की आग में जल रहा है। कौमी हुकूमत की तरफ से इस इलाके को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से नफरत में मजीद शिद्दत पैदा हो रही है। IS से वाबस्ता एक इंतहा पसंद ग्रुप इस बदअमनी का इस्तेसाल कर रहा है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। वो बस्तियों पर वहशियाना हमले करते हैं और अपने इस काम में मदद के लिए मकामी मायूस नौजवानों की तकर्रुरी कर रहे हैं। इन नौजवानों को ये बावर कराते हैं कि दरअसल उनका मकसद खित्ते में एक इस्लामी खिलाफत कायम करना है, यानी इस्लाम के नाम पर ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं अगर साफ अंदाज में कहा जाए। और जिस तरह से इन्होंने दहशत फैलाई है, जिस तरह की वहशतनाकी साबित कर रहे हैं, एक फुटबॉल मैदान में पूरे के पूरे गांव के नौजवानों को जमा करके सरकलम कर देना और घरों को जला देना और घरों से निकलते हुए बच्चों को अगवा कर लेना, या आखिर कौन सी इस्लामी खिलाफत है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर ये ऐसी कौन सी तंजीम लोग हैं जो इस तरह बहकावे में आकर के इन लोगों के साथ चले जाते हैं। अप्रैल में जंगजुओं ने 50 से ज़ायद नौजवानों को उस वक्त हलाक और उनका सर कलम कर दिया था जब इन नौजवानों ने मुबैना तौर पर इस ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यानी आप किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए
पेश करें और जब इनकार करें तो उनका सर कलम करने के लिए आखिर कौन सा धर्म कहता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बागियों को काबू में करने के नाम पर इस सूबे में इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ भी कर रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, जो असल मुजरिम होते हैं उन तक सरकार या उसकी फ़ौज पहुँचती नहीं है। जो फंसाए जाते हैं तो वो मासूम नौजवानी होते हैं। एक तरफ इन तंजीमों के चुंगल में भी फंस जाते हैं, इनकार करने पर मारे जाते हैं, और उधर तहरीक के नाम पर सरकारी तंजीमें इनको परेशान करती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का हालात बनाए हुए हैं इस वक्त अफ्रीका के ऐसे जगहों पर जहां पर खुद साख्ता इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की ये IS और इस तरह की तंजीमें पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं। और इनको बैक सपोर्ट कहाँ से होता है और किस तरह इस्लाम और मुसलमानों को जो है बदनाम करने के लिए ये लोग तंजीमें तश्कील देते हैं, उनकी बुनियाद कहाँ से आती है, ये जो है सबसे अहम तरीन और तशवीशनाक बात है जो इस वक्त पूरी तरह से बदनाम करने के लिए इस्लाम को इस तरह की तंजीमें सामने आती हैं और पूरी तरह से जो है इस वक्त शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी अपने इंतहा को पहुँचाते हैं और मासूमों के गले काट जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। मैक्सिको में शदीद बारिशों ने 9 जानें ले ली हैं। जी हाँ, जनूबी मैक्सिको के इलाके तबास्को में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब से 9 अफराद हलाक हो गए। वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते से मौसर मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब ने भारी तादाद में मकानात, सड़कों, पुलों और ज़रिया राजी को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया है। तबास्को में 9 अफराद हलाक हुए जबकि 9000 को महफूज मकामात को मुंतकिल कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब बारिश का कहर मैक्सिको तक भी पहुँच गया है और अलग अलग अंदाज में वहाँ पर जो नुकसानात होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नाज़रीन, मैं आपको ले चलता हूं अज़रबैजान की इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं जहां पर इस वक्त आर्मेनिया के खिलाफ जंग जीतने पर यहां के अवाम पूरी तरह से जश्न मना रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आर्मेनिया, अज़रबैजान और रूस ने मंगल की सुबह 1 माह की खूनरेज़ी के बाद इलाके में जंग के खात्मे के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाली ऑनलाइन मुलाकात में कहा, सहफरीकी मुआहदा लड़ाई के खात्मे में अहम नुक्ता साबित होगा। रूस के सदर का कहना था कि नागोर्नो काराबाग की सरहदों और उसके आर्मेनिया के दरमियान इलाके में अमन फौज तैनात की जाएगी। दूसरी जानिब नागोर्नो काराबाग के रहनुमा अराइक हरवेतेनुन्यान ने फेसबुक पर लिखा है कि वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके जंग खत्म करवाई जाए। जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान 1.5 माह तक जारी रहने वाली लड़ाई और अज़रबैजान की फौजों की पेशकदमी के बाद किया गया है। बाको ने इलाके के दूसरे बड़े शहर पर कब्जे के बाद पीर को नागोर्नो काराबाग के कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। फिर उसके बाद से जो है लगातार अज़रबैजान आर्मेनिया के कब्जे में मौजूद कई सारे इलाकों को आज़ाद करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की थी। इसी के चलते अब जो है इस जश्न को मनाया जा रहा है और अज़रबैजान फतह हासिल कर चुका है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो इस वक्त बिहार की सीमांचल के कुछ इलाके में कामयाबी दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, 5 इलाकों में MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लीडरान की जीत की जहां खबरें आ रही हैं, वहीं पर सीमांचल के इलाके में महागठबंधन का खेल खराब करने का इल्ज़ाम भी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी पर लग रहा है। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि सियासी लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ के 4 अजला पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में 70% मुस्लिम वोट हैं। अब जो इंतखाबी नताइज रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सीमांचल की 24 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महागठबंधन का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और इनको एक मरतबा फिर बीजेपी का सपोर्ट करने का इल्जामात लग रहे हैं। और 24 सीटों में महज 5 पर गठबंधन आगे है जबकि 11 पर एनडीए को सबकत हासिल है, जिनमें से ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों पर आगे है। अब आगे बढ़ते बढ़ते 5 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ऐसे हालात में अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत सारे महागठबंधन की सीटों पर और उनके वोटों पर कदगन लगाया है। बहरकैफ उनकी इसमें नीयत हो ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि नताइज जब पूरी तरह सामने आ जाते हैं, वोट जब काउंटिंग होती है कि असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट गए, महागठबंधन के उम्मीदवार को कितने गए और उसके बाद एनडीए उम्मीदवार को कितने गए और उसके बाद जोड़ा जाता है एनडीए की वोटों को, फिर महागठबंधन के वोटों को, फिर उसके बाद MIM के कैंडिडेट को,
फिर महागठ बंधन के कैंडिडेट और एम के वोट को जब जोड़ करके देखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके वोट एनडीए के उम्मीदवार से वोट ज़्यादा होंगे। ऐसे हालात में एम पर इल्ज़ाम लगना तय है कि उन्होंने बीजेपी के बी टीम के हिसाब से काम किया है और हमेशा से इल्ज़ामात एम पर लगते रहे हैं, वो चाहे कहीं भी इंतखाबात लड़े, अक्सर इस तरह के इल्ज़ामात से एम को सामना होता है। इसी के चलते अब बिहार में भी इनको पूरी तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की फिलवक्त ये खबर आ रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। भाई कैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म